Hello everyone, welcome to PS Tutorials. I hope you all are fine and doing well. Okay then, so with this, in our today's session, we will be learning about all the topics related to graph theory. Okay, so this subject, that is your graph theory, you will be learning, like for sure you will be learning while you are pursuing your BSc, MSc degrees, right? Or maybe in engineering as well. Okay, and BCA also. Okay, so in all these courses you will be learning about the subject graph theory. Okay, so today we won't be moving into depth, right? Okay, so we will just keep it short and simple. ठीक है, आज हम ज्यादा टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे. We will just only go with the introduction part, right? So like, what is a graph? Okay, how many different types of graphs are there, right? So all these small things we will be just discussing in our today's session. And within the upcoming classes, okay, so you will get to learn for sure regarding more topics. Okay, so each and every topic we will be covering one by one. But since this is your first session related to graph theory, so we will keep it simple and short, right? We will just go with the introduction part. Okay, so yes, then let's start with our topic, that is graph theory. Okay, so this topic is really very interesting. Okay, बहुत interesting topic है. And it's easy as well. Right. So, agar aapko, like, you are well aware of all the definition and the basic knowledge, then yes, it is really very easy and interesting yet. Okay. So, all right then. So let's start. Okay. So now the very basic thing is, what is graph? है ना? Graph theory में ही graph है. Okay. I am sure you all are well aware of this word graph. है ना? So like in our classes also, आप लोगों ने लाइक बहुत तरीके के ग्राफ बनाए होंगे, ऑल द डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ. बट हियर यू विल बी फॉर्मिंग येट अनदर टाइप ऑफ ग्राफ. Okay, so yes, so a graph can be used to show any data in an organized manner, right, with the help of pictorial representation. ठीक है, तो अगर आपने अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करना है, so that you will just look at that representation and you will get to know each and everything. है ना, मतलब हमें उसको देख के ही पता चल जाए. फॉर एग्जाम्पल योर बार ग्राफ्स. ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट बार ग्राफ्स एज वेल. सो ग्राफ को देख के ही पता चल जाता है. सो यू कैन फाइंड द मैक्सिमम, यू कैन फाइंड द मिनिमम एंड एवरीथिंग यू कैन डू. So we can show the relationship basically between the variable quantities with the help of graph. तो graph की help से हम क्या करते हैं, हम relationship show करते हैं. Okay, you remember like हम x axis draw करते थे. Okay, हम y axis draw करते थे. So here we're gonna give some information related to x axis and same thing with the y axis. Okay, so अब उनके बीच में जो भी relation था, राइट, सो वी वर मेकिंग यूज ऑफ बार्स. ये हैं आपके बार ग्राफ्स, राइट, ऐसे हम बनाते थे. ओके, सो ग्राफ से आपको एक रिलेशनशिप मिल जाता है, राइट. ओके, सो हम ग्राफ थ्योरी में क्या करेंगे? सो लाइक इन ग्राफ थ्योरी वी यूजुअली यूज द ग्राफ to show a set of objects, and these objects are connected with each other in some sense. Now what does it means? Okay, objects are connected to each other with some sense. For example, like we are having four markets. Let's take one example. Okay, so like graph theory में आपको daily, like जो चीजें आप डेली बेसिस पे करते हो, ओके, उन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो इसीलिए ग्राफ थ्योरी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. सो मेनी मेनी एप्लीकेशन, राइट. सो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फोर मार्केट्स हैं. लेट्स से ए, बी, सी एंड डी. फोर डिफरेंट मार्केट्स आर देयर. ओके, सो देयर इज अ पर्सन, राइट. इसको मार्केट ए जाना है एंड देन मार्केट डी में भी जाना है. तो क्या होगा? इसका मतलब ही इज कनेक्टेड विद दिस ए, है ना. उसको मार्केट ए पे जाना है, तो हमने क्या किया, तो ये उन दोनों के बीच का रिलेशन है, राइट. तो तभी हमने उन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया. सिंपल, इट्स रियली वेरी सिंपल. देन उसको फिर बाद में मार्केट डी भी जाना है. ओके, देन तो हमने इसको मार्केट डी से भी कनेक्ट कर दिया.
कर दिया ना. बट व्हाट अबाउट बी एंड सी? नहीं, इसको बी एंड सी में नहीं जाना है. ओके, बी एंड सी जो मार्केट्स हैं उसको आज वहां काम नहीं है, सो उसे नहीं जाना है. राइट. तो हमने क्या किया? सो लाइक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, तो जिन चीजों के बीच में रिलेशन है, हम उनको क्या कर देते हैं? कनेक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी डू इन ग्राफ थ्योरी. तो ग्राफ थ्योरी में आपको ग्राफ्स ऐसे मिलते हैं. Okay, you will be getting the graph by using vertices and edges. Okay, so we will discuss that. ठीक है, हम हर एक चीज की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, बट वन बाय वन. Okay, so the objects can be described as mathematical concepts which can be expressed with the help of nodes or vertices, and the relationship relation between pairs of nodes can be expressed with the help of edges. Okay, so this is important. ये important है, nodes और vertices and edges. ठीक है, आपका पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी बस इसी से ही चलता है. ओके, नोट्स क्या होते हैं? सी, आपने नोट्स के बारे में पढ़ भी लिया एंड यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट. सी, नोट्स क्या है? दीज आर द नोट्स. इन्हें हम नोट्स बोलते हैं और वर्टिसेस बोलते हैं. ओके, एजेस क्या है? द कनेक्टिंग लाइंस. ये देखो, ये एज है. ओके, सो द कनेक्टिंग लाइंस आर नोन एज एजेस. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर दिया. नहीं, अगर उन दोनों चीजों के बीच में कोई रिलेशन है, देन आप एच ड्रॉ करोगे, आप उन्हें कनेक्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. राइट. सिंस हमें मार्केट ए जाना था तो हमने कनेक्ट किया, हमें मार्केट डी भी जाना था बाद में तो हमने उसको कनेक्ट किया, हमें मार्केट बी एंड सी नहीं जाना था तो हमने उनको कनेक्ट नहीं किया. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू. राइट. अब कौन किससे कनेक्टेड होगा? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, सो वो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अब करेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा. राइट. बट द बेसिक थिंग इज यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ बाय यूजिंग दीज वर्टिसेस एंड एजेस इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. Okay, so this was all about your graph. For example, see over here, यहाँ पे देखो हमारे पास ग्राफ है. ठीक है, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगी? ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ए, ओके, बी, राइट, सी एंड डी, इन्हें हम वर्टिसेस बोलते हैं. ओके, एजेस क्या हो जाएंगी? जो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने जो लाइन ड्रॉ किया, मतलब ए एंड बी आपस में कनेक्टेड है, ए सी आपस में कनेक्टेड है, सी बी आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, सी एंड डी आपस में कनेक्टेड है, तो ये उनके बीच का कनेक्शन है. ओके, देखो, बी एंड डी आपस में कनेक्टेड नहीं है, नहीं है ना कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे हमने एज नहीं ड्रॉ करी, सो दे आर नॉट कनेक्टेड. मे बी कोई रूल होगा ऐसा जिससे उनको कनेक्ट नहीं करना होगा. ओके, तो वो रूल क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, बट दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ ग्राफ. ओके, सो लाइक दिस वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ इन ग्राफ थ्योरी. सिंपल एंड इजी. राइट. आप देख के ही पहचान लोगे कौन किससे कनेक्टेड है. तो जहां जिनके बीच में एजेस हैं दोज वर्टिसेस आर कनेक्टेड, जिनके बीच में एजेस नहीं है सो दोज वर्टिसेस आर not at all connected. Okay, like this we get graphs in graph theory. Okay, now let's move ahead with the definition of graph theory itself. Right, so it's okay, so now you will get to understand. So graph theory can be described as a study of points and lines. Right, as I have told you earlier as well कि graph theory में अब आप graph के बारे में पढ़ोगे जो कि किससे बने होंगे? vertices and edges से. Okay, so you will be getting set of points. Points means these points. Okay, vertices भी जिसे हम बोलते हैं. Right, and lines means these edges. Okay, यही आप पढ़ोगे graph theory में. Right, so you will be going to study all this. Okay, so graph theory, it is a type of subfield that is used to deal with the study of graph. Simple. Yes, so we do study graph in graph theory. Okay, okay, right. So with the help of pictorial representation, we are able to show the mathematical truth. So relation between the nodes and edges can be shown in the process of graph theory. वही चीज है, सेम इट इज. राइट. सो ऑलवेज हम हमेशा यही काम करेंगे, हम वर्टिसेस का यूज करेंगे, एजेस का यूज करेंगे. अगर तो वो कनेक्टेड है तो हम उनके उन पॉइंट्स के बीच में एज ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना, अगर वो कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि बी एंड डी कनेक्टेड नहीं है, तो हम उन्हें एज ड्रॉ नहीं करेंगे बस. ओके, दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन ग्राफ थ्योरी.
राइट नाउ। अब ग्राफ थ्योरी में आपको बहुत सारी नोटेशंस भी मिलेंगी, तो एक एक करके हम सब कलेक्ट करते जाएंगे। राइट, सो आप भी अपनी ये नोटबुक में एक जगह लिख लो। ओके, एंड स्लोली यू विल बी हैबिचुअल ऑफ ऑल दीज नोटेशंस, डोंट वरी। ओके, सो ग्राफ ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दिस, कैपिटल जी का मतलब कि वो ग्राफ है। हम्म, ठीक है। देन ब्रैकेट्स लगाते हैं हम। ब्रैकेट में वी का मतलब वर्टेक्स जो है, राइट, एंड ई का मतलब एजेस जो है। ओके, तो ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। राइट, सो वी इज यूज टू इंडिकेट द फाइनाइट सेट vertices and E is used to indicate the finite set edges. Obviously finite ही होगा, है ना, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ओके, तो फाइनाइट का मतलब जिसे आप काउंट कर लो, ठीक है ना, चाहे 100 भी हो लेकिन दैट इज फाइनाइट। राइट, सो फाइनाइट vertices and finite edges, we are just writing it over here. Okay, so this is the simple representation of graph. Like this you can represent the graph with the help of this pair. Okay, now hence the graph basically contains the non-empty सेट ऑफ एजेस ई एंड सेट ऑफ वर्टिसेस वी। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस होता है, दैट इज वी, एंड सेट ऑफ एजेस होता है, विच इज ई। ओके, now let's move ahead with one example. Right, okay, so as you can see over here, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ग्राफ है, देखो, G इक्वल्स टू वी। हमने वही वाला एग्जाम्पल फिर से लिया सो दैट आप समझ पाओ कि हम इसे कैसे लिख रहे हैं, वर्टिसेस क्या है एंड एजेस क्या है। ठीक है, तो वर्टिसेस में क्या आएंगे? ये सारे पॉइंट्स है ना, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, राइट, देन यू हैव सी एंड डी। बस आपको यहाँ पे इसको सेट की फॉर्म में लिख देना है ना। सेट हम सबको पता है, वी हैव लर्नड in our 11th and 12th standard as well. Okay, so curly brackets में आप सारे elements को उसके लिख दोगे। ठीक है, एंड यस मेक श्योर कि आप यहाँ कॉमास भी लगा रहे हो, कॉमास भी लगाना है। ओके, एंड यहाँ कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, सो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, राइट, तो ये है वी। ठीक है ना, यहाँ से आया वी, वर्टेक्स का जो सेट है, दैट इज योर वी। ओके, अब एजेस आप कैसे बनाओगे? ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल। देखो, ए एंड बी के बीच में लाइन है, दे आर कनेक्टेड, तो एज को आप कैसे लिखोगे? दिस इज योर ए कॉमा बी, मतलब ये ए एंड बी के बीच में है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, देन यू हैव ए सी। AC will be A comma C, simple, ये एक edge है, ये देखो, A comma B we have written and A comma C we have also written. Now similarly try to find more. Okay, so this is what, this is between B comma C, B comma C. Okay, so here is B comma C. Okay, then you can go with this one, this is C comma D, C comma D it is, simple. ठीक है ना, बस इतनी तो है एजेस आपके पास, देन यू आर डन। ओके, क्लोज द ब्रैकेट्स, बस ये आपका सेट हो गया, दिस इज योर सेट। ओके, दिस इज योर सेट, राइट, सो V stands for the set of vertices and E stand for the set of edges. ओके, हमारे पास यहाँ 4 edges थी ना, so we have written these 4 edges as well, right, so that's what you will be learning in graphs. Okay, simple, no? All right then. Now we have different types of graphs. ठीक है, तो basically अभी हम पढ़ेंगे, not today but during our upcoming sessions you will be learning about undirected graph and directed graph. देखो, अब इसमें difference क्या होता है directed and undirected में? I'm just giving you basic introduction about each and everything. ठीक, अनडायरेक्टेड का मतलब क्या हो गया? मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, अनडायरेक्टेड। ओके, एंड डायरेक्शन हम कैसे देते हैं? विद द हेल्प ऑफ एरोज, राइट, विद द हेल्प ऑफ एरोज वी गिव डायरेक्शन। अगर आपको भी किसी को डायरेक्शन देना है, हम कहेंगे ना, लाइक मूव टू द लेफ्ट, मूव टू द राइट, गो स्ट्रेट, लाइक दैट। ओके, नाउ यू कैन सी कि इस ग्राफ में कोई भी कहीं पे भी एरोज नहीं है, सो दिस इज योर अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे एरोज ड्रॉ कर दे अगर हम, ठीक है, सो यू विल गेट ग्राफ इन दिस वे एज वेल, जहाँ पे आपको एरोज मिलेंगे एजेस के ऊपर। तो अगर एरोज है तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, दिस इज योर डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, दिस इज योर डायरेक्टेड ग्राफ। एंड वन मोर थिंग एवरीवन, सी, अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है ना, तो देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास ये एज है,
इस एज को आप a कॉमा सी लिखो या फिर c कॉमा a लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है, इट्स सेम ओनली if it is undirected. Okay, if it is undirected. Okay, so we will learn all these things again as well, right? ठीक है ना? लेकिन if you are having a directed graph like this, then आपको a कॉमा c ही लिखना है. This will only work. आप c कॉमा a c कॉमा a, right? c कॉमा a आप नहीं लिख सकते. No, this is wrong, right? Because of direction. क्योंकि अब हमने डायरेक्शन दे दिया, इसका मतलब हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं. ओके, आप सी से ए की तरफ नहीं जा सकते बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन इन दैट वे. सी से ए पे जाने के लिए, ओके, यू आर नॉट हैविंग एनी पाथ, बट फ्रॉम ए टू सी यू कैन मूव इजिली. Okay, so all these things you will be learning during this topic, like your undirected and directed graph, right? And yes, we will be definitely learning lots of graph as well. Okay, and ये graph आपको आपकी books में भी मिलेंगे, right? So you have null graph, simple graph, multi graph, connected graph, okay, cycle graph, complete graph, planar and non planar graph. Okay, so all these, and इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा graphs होते हैं, बहुत सारे graphs होते हैं. Okay, but the basic thing is your graph is made up of set of vertices and set of edges. Okay, अब कौन सी एज कहाँ पे है, कौन सा वर्टेक्स किससे कनेक्टेड है. ओके, सो इन सब चीजों के ऊपर ही आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्राफ मिल जाते हैं, right? So you will be learning about all these graphs one by one in your upcoming session. Okay, so yes, thank you everyone for watching the video. So keep learning. Okay, and yes, we're gonna learn lots of more topics within the upcoming session. So thank you everyone, goodbye.